جانی بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، عوام اور تاجر تنظیموں نے جمعہ اور ہفتہ کو بینک کھولنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ کاروباری سرگرمیاں بحال ہونے کے بعد لین دین کے معاملات میں مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ عید قریب ہے، کاروباری سرگرمیاں بحال ہونے کے بعد لین دین کے معاملات میں مشکلات کا سامنا ہے۔ عوام اور تاجر تنظیموں نے جمعے اور ہفتے کو بینک کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ رہنما کا کہنا ہے کہ عوام اور کاروباری حضرات کی سہولت کے لیے بینک جمعے اور ہفتے کو بھی کھولے جائیں۔ ہمیں اتنے کم دن ملے ہیں کہ بینکنگ کا کام تو ہو ہی نہیں سکا ہے، اور اگر اب تھوڑا تھوڑا بینکنگ کا کام ہمارا جب شروع ہوا ہے، اگر یہ جمعہ اور ہفتہ اور اتوار کو بھی اگر بینک کھول دیے جائیں تو ہمارے لیے آسانی ہوگی، ہمارے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ بینکوں کی تمام برانچز پورے سٹاف کے ساتھ کھولی جائیں تاکہ معاملات میں آسانی پیدا ہو سکے۔ تعمیراتی شعبے سے وابستہ معروف شخصیت سردار تنویر سرور کا کہنا ہے کہ زیادہ تر پیمنٹس جمعے اور ہفتے کو ہوتی ہیں، بینک بند رہے تو بہت پریشانی کا سامنا ہوگا۔ ہمارا اصل میں جو کام ہے پراپرٹی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ، ہماری جو پیمنٹس نے آنا ہے وہ بہت مشکل سے جمعرات، جمعہ اور ایون ہفتے تک وہ پہنچتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے تو بڑے لوگوں سے یہ پرومس کیا ہوا تھا کہ آپ کو جمعرات یا جمعے کو پیمنٹ ہو جائے گی، اور اگر جمعے کو یہ بند ہو جاتا ہے اور اگلے وینسڈے تک بند رہتا ہے تو ہمیں اس میں کافی ساری مشکلات ہیں، اور ہمارا بیسیکلی یہ عید تک مارکیٹیں اور شاپنگ مالز کھولے گئے ہیں، لیکن اگر بینک ہی بند ہوں گے تو عوام کا کیا ہوگا؟ تنخواہ دار طبقہ بھی پریشان ہے۔ جمعے اور ہفتے کو بینک بند ہوئے تو تنخواہ کا حصول مشکل ہو جائے گا۔ یہ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد کے شہریوں نے حکومت سے جمعہ اور ہفتہ کو بینک کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ مطالبہ کیا ہے، جانتے ہیں اویس علی سے۔ جی بالکل، حکومت کی جانب سے عید سے پہلے جمعے اور ہفتے کو بینک کھولنے کا جو فیصلہ ہے وہ تحال نہیں کیا جا سکا۔ جن شہریوں کی تنخواہیں جمعے اور ہفتے کے روز آئیں گی تو وہ بینک بند ہونے کی صورت میں اپنی تنخواہیں نہیں نکلوا سکیں گے، تو اس طرح سے شہریوں کو تنخواہ کے بغیر عید جو ہے وہ گزارنا پڑے گی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی حوالے سے شہریوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت ہفتے اور جمعے کے روز جو ہے وہ بینک کھولے۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، سوال سن کا کیا کہنا ہے۔ اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ بینکوں کے باہر رش بھی بڑھ گیا ہے، تو کیا مطالبہ کریں گے حکومت جمعے اور ہفتے کو بینک کھولے؟ سر یہ پہلے بھی نا آپ کے سامنے ہے جو بھی صورتحال ہے، بینک ٹائم جو بہت کلوز ہے، یعنی کہ 10:30 بجے سے لے کے 1:30 بجے تک ٹائم ہے، تو اگر جمعے اور ہفتے کو بھی بینک بند رہیں گے تو ہمیں پیسے لینے اور میں بہت دشواری ہوگی۔ لہٰذا گورنمنٹ کو چاہیے کہ جمعے اور ہفتے والے دن بینک کھولے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں پر جو شہری موجود ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ عید کی وجہ سے بینکوں کے باہر جو ہے وہ رش بھی بڑھ گیا ہے، اور لمبی لمبی قطاروں میں لگ کر اور بیٹھ کر بینکوں کے باہر جو ہے وہ شہریوں کو رقم نکلانا پڑتی ہے۔ ایسے میں حکومت جو ہے وہ جمعے اور ہفتے کو بینک کھولے تاکہ شہری جو ہے وہ بآسانی اپنی تنخواہ جو ہے وہ نکلا سکیں۔ اسی حوالے سے جو ہے وہ یہاں پر رش بھی جو ہے وہ شہریوں کا بڑھ گیا۔ ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ جمعے اور ہفتے کے روز بینک کھولنے چاہیے، مطالبہ کریں گے حکومت سے؟ کھلنے چاہیے جمعے ہفتے دن بینک ادا میں پیسے کٹانے میں دشواری ہوتی ہے۔ اچھا، آپ یہاں پر آئے ہیں، انتظار کرنا پڑا ہے، رش زیادہ ہے یہاں پہ؟ روزہ ہے، روزے کے اندر بھی وہ جانے نہیں دے رہے، اندر گرمی اتنی شدید ہے، گھر جانے میں پھر دشواری ہوتی ہے۔ جی بالکل، روزے کی حالت میں شہریوں کو جو ہے وہ پہلے ہی گھنٹوں بینکوں کے باہر انتظار کرنا پڑتا ہے، انتہائی کم وقت کے لیے جو ہے وہ بینکوں کے کھلنے کے اوقات کار ہیں۔ ایسے میں جو ہے وہ اگر جمعے اور ہفتے کے روز بینک بند کیے گئے تو بینکوں کے باہر رش جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گا، اور جن شہریوں کی تنخواہیں جمعے اور ہفتے کے روز آئے گی ان کو تنخواہ کے بغیر عید کرنا پڑے گی۔ اسی حوالے سے شہریوں کی جانب سے حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جمعے اور ہفتے کے روز جو ہے وہ بینک کھولے جائیں تاکہ شہری جو ہے وہ بآسانی۔ جی اویس علی، آپ کا بہت شکریہ، آپ فیصل آباد سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب رخ کرتے ہیں جھنگ کا، جہاں شہریوں کا اس اقدام پر کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ اس سے پہلے مزید بات کرتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، کرونا ایمرجنسی کے دوران کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے جو بینکس ہیں ان میں بھی چھٹیاں کی گئی ہیں۔ جمعہ اور ہفتہ کو بینک بند رکھے جا رہے ہیں، جس سے شہری اور تاجر جو برادری ہے وہ خاصی مشکلات کا شکار دکھائی دے رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عید سے قبل جو جمعہ اور ہفتہ ہے اس کو حکومت پاکستان جو ہے وہ چھٹیوں کو کینسل کرے اور جمعے اور ہفتے کو جو ہے وہ بینک کھولے جائیں تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکیں۔ اسی حوالے سے بات بھی کریں گے انجمن تاجران جھنگ کے ضلعی صدر تو ہاشم علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کہ ابھی جمعہ اور ہفتے کو بینک
बंद हैं, ईद की छुट्टियां अब भी आ रही हैं, तो क्या समझते हैं कि क्या किस किस्म की मुश्किलात आपको दरपेश आती हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सिटी 41 का इंतहाई मशकूर हूँ कि पूरे डिवीज़न में ताजर बिरादरी और अवामी मसाइल को उजागर करने में इसने अहम किरदार अदा किया। और आज ख़ासकर मैं फेडरल गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि जुम्मा और हफ्ता को बैंक खोले जाएं ताकि गरीब मुलाजम जो छोटे मुलाजम जो हैं और पेंशनर हज़ार अपनी सैलरी लेकर अपने बच्चों के साथ उनकी ईद की शॉपिंग कर सकें और खुशियों में शामिल हो सकें। और इसी तरह हमारे ताजर बरादरी इतनी परेशान है कि 22 से लेकर 27 तक छुट्टियाँ हैं और इसमें अदायगी करनी है, लेन देन करना है ताजरों ने, और उसके लिए उनके लिए काफ़ी परेशानी है। तो लिहाजा मैं अपील करता हूँ कि जिस तरह इमरान खान साहब आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, ताजरों को मुख्तलिफ हवाले से रिलीफ दे रहे हैं, इसमें भी हमारे साथ ताउन करें। जुम्मा और हफ्ता को बैंक खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि हम अपने लेन देन का मामला ठीक कर सकें। जी मुबशिर हसन नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। जुम्मा और हफ्ता को बैंक खोले जाएं, इस पर शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये जो जुम्मे और हफ्ते वाले दिन छुट्टी का ऐलान हुआ है हमारे सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत बुरा है, क्योंकि अभी हमने बैंकों से तनख्वाहें लेनी है। जी साडी हुकूमत है पाकिस्तान तो अपील की जाती है कि ए ईद के दौरान जड़ियाँ 2-4 दिन ना जुम्मा हफ्ता इनू छुट्टी ना की जाए, क्योंकि बाजारां च इतना रश है कि लंघिया भी नहीं जाता और बैंकों के बाहर इतना रश है ना जिसकी इंतहा कोई नहीं। 2 दिन छुट्टी हो गई ना तो फिर सब तो ज़्यादा मसला बन जाना है। इतनी परेशानियां लोगों को हो रही हैं कि सिर्फ 3 और 4 दिन मतलब वर्किंग डे है। आप जाके बैंक के सामने जाके देख सकते हैं कि लाइनों में लोग लगे हुए रोज़ा रख के। फैसलाबाद डिवीजन भर की तरह चिन्योट के बैंकों के बाहर भी मुलाजमीन और शहरियों का रश बढ़ गया। मजीद जानते हैं बाबर मुनीर से। फैसलाबाद डिवीजन के दीगर शहरों की तरह चिन्योट में भी कोई सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नहीं है। बैंकों के बाहर शहरियों का जमे गफीर है और सरकारी मुलाजमीन को अभी तक हुकूमत की जानिब से ये फैसला नहीं किया गया। ईद जो है वो नहीं दी गई है, तनख्वाहें जो है वो जारी नहीं की गई, जिसकी वजह से और ना ही हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया कि जुम्मा और हफ्ता को बैंक जो है वो खोले जाएंगे, जिस वजह से शहरी जो है वो खासे परेशान है। सरकारी मुलाजमीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या मुतालबा करेंगे? अभी तक ये डिसाइड नहीं हो सका। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि जुमे और हफ्ते को बैंकों को पाबंद किया जाए कि वो लोगों को पेमेंट करें ताकि हर बंदा पैसे लेकर अपनी ईद की खुशियां बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर सके। तो हमारी जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुख करते हैं टोबा का, जहां जुम्मा और हफ्ता के रोज बैंकों की छुट्टी के बाद ताजिर बरादरी और आम शहरी परेशानी का शिकार है। मजीद तफसीलात जानते हैं राना आजर नूर से। बिल्कुल, ईद से कबल आखिरी हफ्ता चल रहा है। इस वक्त दुकानें तो खुल चुकी हैं लेकिन ताजिर अब परेशान जरूर हैं। वो हैं बैंकों के हवाले से, क्योंकि जुम्मे हफ्ते को बैंक बंद होंगे। अमजी साहब, आप अजमी ताजा टोबा टैक्सिंग के चेयरमैन हैं और दुकानें अब खुल चुकी हैं, लेकिन अब आपका मुतालबा है कि बैंक खोले जाएँ, इसकी क्या वजह है? जी बहुत शुक्रिया राना साहब। बैंक नहीं खुलेंगे तो हमें बहुत मुश्किलात होंगी। मुश्किलात तो पहले ही बैंक के जो टाइम की शॉर्टेज है उसमें बहुत है, और अगर जुम्मे को और हफ्ते को बंद रहेंगे तो हमारे बिजनेस पे बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि हमने पैसे भेजेंगे तो हमें माल आएगा, और ये 2 दिन हमारे कारोबार के लिए बल्कि सभी कारोबारों के लिए बहुत अहम होते हैं। हम पैसे लगवाएंगे, बैंक खुलेंगे तो पैसे लगेंगे तो माल आएगा। तो आप बताइएगा कि आप भी ताजिर हैं, आपका कपड़ा कारोबार है, समझते हैं कि जुम्मे हफ्ते को बैंक खुलने चाहिए? बिल्कुल जी, लाजमी खुलने चाहिए। बैंकों के हवाले से हमारा कारोबार जो है ना, कारोबार के हिसाब से मतलब पैसे जाएंगे तो कुछ ही। जी राना अजनूर, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद वासा मुलाजमीन की मीठी ईद भी फीकी होने लगी। वासा की जानिब से मई की तनख्वाहें 18 मई तक अदा न हो सकी। मजीद तफसीलात जानेंगे रमजान मिर्जा से। ताहाल वासा की जानिब से मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी यकीनी नहीं बनाई जा सकी। हुकूमत की जानिब से ये हिदायत की गई थी कि तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें 18 मई तक अदा कर दी जाए, लेकिन 18 मई गुजर चुका है। इसके बावजूद वासा मुलाजमीन तनख्वाह के लिए अभी तक मुंतज़िर है। गुज़िश्ता माह की तनख्वाहें भी जो हैं वो इस माह अदा की गई हैं, और ऐसे वर्कचार जो कि कई महीनों से वासा में अपनी सर्विसेज अदा कर रहे थे उनको तनख्वाहें जो हैं वो नहीं अदा की गई। इसके साथ साथ डायरेक्टर जनरल FDA की जानिब से एक नोटिफिकेशन भी भिजवाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि वर्क चार्ज की तनख्वाहें जो हैं वो DG की अप्रूवल के बिना ना दी जाएं। इसलिए ऐसे मुलाजमीन जो कि आर्जी तौर पर वासा में अपनी खिदमात दे रहे थे उनको तनख्वाहें नहीं दी जा सकें, और बड़े मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहें जो हैं कई हज़ारों में हैं और 1 लाख के लगभग हैं, वो भी अभी तक मुंतज़िर हैं। इसके साथ साथ ऐसे मुलाजमीन जो कि वासा से अपनी खिदमात जो हैं वो अंजाम देकर रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन जो हैं वो भी इस माह की अदा नहीं की गई, जिस वजह से। जी रमजान मिर्जा, बहुत शुक्रिया। अफराद की कोरोना वायरस नेगेटिव रिपोर्ट आने पर घर भेजने का फैसला कर लिया। मज़ीद तफसीलात हमें बताएंगे असदार हुसैन।
بالکل محکمہ صحت انتظامیہ نے 200 افراد کی فہرست جو ہے وہ تیار کر لی ہے، جس میں پازیٹیو اور کرونا وائرس کے مشتبہ افراد جن کے نمونے وغیرہ لیے گئے تھے انہیں گھر بھجوایا جائے گا، اور ایسے میں 200 افراد کی جو فہرست ہے وہ ضلع انتظامیہ کو بھجوائی جائے گی، جس کے بعد 200 افراد جو ہیں وہ جو کہ قرنطینہ سینٹر میں مقیم تھے، اس کے علاوہ نجی ہوٹل میں اور جنرل اسپتال غلام محمد آباد میں زیر علاج تھے، اور ایسے میں کچھ افراد کی جو رپورٹ تھی وہ پازیٹیو تھی، اور ایسے میں یہاں پہ انہیں علاج کی جو سہولیات تھیں وہ فراہم کی جا رہی تھی، مگر بعد میں ان کی جو رپورٹ تھی وہ نیگیٹو موصول ہوئی تھی، اور ایسے میں 200 افراد کی جو فہرست ہے وہ محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے تیار کر لی گئی ہے، اور ایسے میں ان 200 افراد کو ان کے گھروں کو بھجوایا جائے گا، جس کے بعد 200 افراد جو ہیں وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ عید کی خوشیاں جو جی زدار حسین، بہت شکریہ آپ کا۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب تاک راتوں میں سب سے مقدس سمجھے جانے والی رات ہے، عبادات کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، اللہ کی یاد میں شب بیداری کی جاتی ہے، علماء کرام کی کورونا کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے، ملک کی ترقی، سلامتی اور وبائی امراض سے نجات کے لیے دعائیں بھی مانگی جائیں گی۔ اپڈیٹس آپ نے جانی، اب آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر ٹرین سفر بحال ہو گیا۔ حکومتی احکامات کے مطابق ملک بھر سے آج 4 ٹرینیں فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر پہنچیں گی۔ ٹرینوں کو کیا اوقات کار ہوں گے، جانیں گے اویس علی سے۔ جی بالکل، حکومتی احکامات کے مطابق فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر ٹرین سفر جو ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے آج فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر ملک بھر سے 4 ٹرینیں پہنچیں گی۔ چاروں ٹرینیں فیصل آباد سے کراچی روانہ ہوگی۔ پاکستان ایکسپریس راول پنڈی سے براستہ فیصل آباد سے کراچی روانہ ہوگی، اور اس کے علاوہ کراکرم ایکسپریس لاہور سے براستہ فیصل آباد سے کراچی روانہ ہوگی، اور شاہ حسین لاہور سے براستہ کراچی روانہ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ملت ایکسپریس لالا موسیٰ سے براستہ فیصل آباد سے کراچی روانہ ہوگی۔ چاروں ٹرینیں جو ہیں وہ فیصل آباد سے کراچی روانہ ہوگی، اور اس کے علاوہ کل جو ہے وہ کراچی سے 4 ٹرینیں فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر پہنچیں گی۔ اسی حوالے سے جی اویس علی، بہت شکریہ آپ کا۔ ایف بی آر نے اپریل کے ٹیکس واجبات، سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کر دی۔ مزید تفصیلات جانیں گے عمیر عصمت سے۔ جی فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے اپریل کے مہینے کے سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جمع کروانے کی تاریخ میں اضافہ کر دیا ہے، جبکہ سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے گوشوارے جمع کروانے کی آخری تاریخ بھی بڑھا دی گئی ہے۔ ٹیکس گزار اب بغیر کسی جرمانے کے 28 مئی تک اپنی ٹیکس واجبات ادا کر سکیں گے، جبکہ سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی ریٹرنز 30 مئی تک جمع کروائی جا سکیں گی، جبکہ اس سے قبل واجبات جمع کروانے کی آخری تاریخ 15 مئی اور گوشوارے جمع کروانے کی آخری تاریخ 18 مئی تھی۔ تاہم ابھی جو ٹیکس گزار ہیں وہ بغیر کسی جرمانے کے اپنے گوشوارے 30 مئی تک جمع کروا سکیں گے۔ جی عمیر عصمت، بہت شکریہ آپ کا۔ پیپلز کالونی نمبر 2 رسول نگر کے شہری پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات بتائیں گی شاہدہ پروین۔ جی بالکل، راجہ گلامر سور نگر کے رہائشیوں کے مسائل حل نہ ہو سکے۔ رمضان المبارک کے آغاز سے ہی یہاں پر شہریوں کے لیے پینے کا صاف پانی جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہے، اور اگر آتا بھی ہے تو وہ پانی جو ہے وہ گندا آتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف پانی پینے کے قابل بھی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں اور پانی سے بدبو بھی آتی ہے، جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ خاصے پریشان ہیں، خاص طور پر خواتین جن کو جو ہے وہ ان پانی سے جو ہے وہ آٹا بھی گوندنا ہوتا ہے، برتن بھی صاف کرنے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو پلانا ہے، تو ان کے لیے خاصی مشکلات کا سامنا بھی ہے۔ تو خواتین یہاں پر موجود ہیں، ان سے جانتے کیا کہیں گی۔ آپ بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے، پانی کب سے جو ہے وہ نہیں آ رہا میٹھا پانی، اور اگر آتا بھی تو وہ صاف نہیں ہے؟ پورا رمضان نہیں آتا، پورا رمضان میں یہ گندا پانی آتا ہے، ابل تو آتا ہی نہیں ہے۔ فون کر کر کے بھی ان کو کہا ہوا ہے کہ پانی بالکل نہیں آ رہا۔ اسی علاقے سے فرق حبیبن ہے، ایک دن مسئلہ حل کرنے کے لیے وہ نہیں آیا، آتے نہیں ہیں، وہ آئے ہی نہیں ہے، حالانکہ اس کو بتاتے بھی ہیں، پتہ بھی چلتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ نہیں آ رہا ہے۔ اس ایریے میں جو بھی بنتا ہے نا، وہ ووٹ لینے کے لیے آ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ پوچھتے بھی نہیں ہے کہ یہ ہر رمضان۔ جی بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مائکرو فائنانس کمپنیوں کے خلاف ضلع کونسل چوک میں مزدور خواتین احتجاج کر رہی ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے رانا فضیل احمد سے۔ بالکل، پاور لوم مزدور کے جو بیویاں ہیں انہوں نے آج احتجاج کیا ہے ضلع کونسل چوک میں۔ عورتوں کی جانب سے شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے،
माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ औरतों की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि हमें सूद पर हमने कर्जे लिए थे, जो आसान एक साथ में हम अदा करती थी ज़रूरत के लिए, वो कर्जे लिए गए, लेकिन लॉकडाउन की वजह से तमाम जो लूमें हैं वो बंद होने की वजह से हमारे जो खावन हैं वो घरों में फारिग होकर बैठ गए हैं, जिसकी बिना पर हम वो एक साथ जो हैं वो नहीं अदा कर सकती। लेकिन जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के नुमाइंदे हैं वो घरों में आकर हमें तंग करते हैं। तो लेबर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन बाबा लतीफ़ अंसारी भी इस एहतजाज में शरीक हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे? ये तमाम मजदूरों की बीवियां हैं, एहतजाज कर रही हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ। 2 महीने से पावरलूम इंडस्ट्री बंद रही है, जिस वजह से मालकान ने भी कुछ नहीं दिया, ऊपर से जिन कंपनियों ने सूद पर कर्जा दिया हुआ था जो कि 1 लाख पर 1,35,000 रुपये तक वापस लेते हैं, 35% सूद लेते हैं। उन्होंने इन औरतों का जीना दूभर कर दिया है, घरों के बाहर आकर बदतमीजी कर रहे हैं। बार बार उन कंपनियों के नुमाइंदों को हमने समझाया है, जैसे कि स्टेट बैंक ने तो उनको रिलीफ दिया, लेकिन इन खवातीन को रिलीफ किसने देने? IMF ने तो हुकूमत पाकिस्तान को 3 साल का रिलीफ, इनको 3 महीने का रिलीफ देने के लिए भी तैयार नहीं है। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि फौरी तौर पर इन कंपनियों को रोका जाए। फौरी तौर पर इन कंपनियों को रोका जाए। बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद कॉटन वेस्ट फैक्ट्री एरिया में मुलाजमीन और दुकानदार मुश्किलात का शिकार हैं। उनकी मुश्किलात क्या हैं, जानेंगे अब्दुल रहमान से। बिल्कुल, बात की जाए अगर यहाँ पर इंडस्ट्री की तो लॉकडाउन खुल चुका है, लेकिन इसके बावजूद जितने भी काम करने वाले हैं वो बड़े मायूस हैं। इस वक्त हमारे साथ सदर कॉटन वेस्ट फैक्ट्री एरिया रेहान इकबाल कंबोज मौजूद है। वो भी अपने जो इश्यूज़ बता रहे हैं जो कि इन्हें दरपेश हैं, वहाँ पर काम करने वालों को, मुलाजमीन को, दुकानदारों को, ट्रेडर्स को दरपेश हैं। इसी हवाले से बात भी करते हैं। कंबोज साहब बताइएगा यहाँ पर क्या मुश्किलात हैं और अभी किस तरह से मामलात मज़ीद बेहतर हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। एक तो जो हमारे परचून वाले लोग हैं ना, उनका काम अभी थोड़ा बहुत चला है, लेकिन आगे ईद के दिन आ गए हैं और जो हमारा ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में काम होता था ट्रक की सूरत में, वो अब उसका तो फ़ायदा ही कोई नहीं हुआ, वो चला ही नहीं, क्योंकि आगे ईद की छुट्टियां आ जानी हैं और गवर्नमेंट ने 7 छुट्टियां दे दी हैं। तो अब यानी कि अभी जो माल वगैरह हम बेचेंगे तो वो आगे ईद के बाद जाके कहीं उनकी पेमेंट्स आनी है, तो इसलिए लोग ना ले रहे हैं ना दे, कोई लेन देन इतना ज़्यादा हो ही नहीं रहा। और ये बिल्कुल 15 दिन पहले इन्होंने लॉकडाउन खोल के यहाँ तो ये परचून वालों को सिर्फ खुलवाते, जो छोटी छोटी दुकानें हैं, ताकि ये जो डेली वेजेस के लोग हैं और जो डेली काम करते हैं इनका हो जाता। जी अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट में पंजाब हाईवे अथॉरिटी की मुबैना गफलत झंग ब्रांच नहर से मुल्हिका राजबा पुल खस्ताहाली का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में पंजाब हाईवे अथॉरिटी की मुबैना गफलत सामने आई है और यही वजह है कि 110 साल पुराना जंग ब्रांच नहर से मुल्हिका 273 जिम्बे माला का जो पुल है वो इंतहाई खस्ताहाली के मनाजिर पेश कर रहा है। यहाँ पर बड़ा गड़ा बन चुका है, जिसकी वजह से ना तो ट्रैफिक की रवानी जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रही है, बल्कि जो हादसात की शरह है उसमें इजाफा हो रहा है। मुतअद्दिद बार इलाका मकीनों की जानिब से देखा जाता है कि पंजाब हाईवे अफसरान को इस बारे आगाह भी किया गया, दरखास्तें भी दी गई, लेकिन ताहाल इससे जो है वो बड़े गड़े को पूर्ण नहीं किया गया, जिसकी वजह से रात के औकात में ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर होती है। दर्जनों देहात यहाँ से जो है वो इससे मुल्हिका जो है वो गुजरते हैं और इलाका मकीन शदीद परेशान है। इस बारे से इलाका मकीन का जी अब्दुल कदीर, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा खुराक चिन्योट की गंदम खरीदारी मुहिम सुस्त रवी का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बाबर मुनीर से। चिन्योट की जो गंदम खरीदारी मुहिम है वो अब सुस्त रवी का शिकार होती हुई नजर आ रही है। जिला भर से 1616 दरखास्तें जो है वो वसूल हुई हैं बारदाना के असूल के लिए, और इसके साथ साथ इस पर बारदाना जो है वो 90% तक जारी कर दिया गया। और इसके साथ साथ PR सेंटर अगर चिन्योट की बात की जाए तो यहाँ पर 68% तक जो है वो टारगेट मुकम्मल किया जा सका। इसी तरह लालियाँ PR सेंटर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 88% टारगेट जो है वो मुकम्मल किया गया। और इसके साथ साथ जो है वो 11 की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 69%, और इसी तरह चनाब नगर में 79% तक जो है वो टारगेट मुकम्मल कर लिया गया। और दूसरी तरफ जो है वो काश्तकार भाइयों का रश जो है वो ना होने के बराबर है। PR सेंटर जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। कमालिया में ईद उल फितर की आमद के साथ ही ब्रायलर का गोश्त गरीब आवाम की पहुंच से बाहर हो गया। गोश्त का क्या रेट है, जानेंगे रिजवान खान से। ईद की आमद है तो उस सिलसिला में जो है मुर्गी के गोश्त का जो कीमतें हैं वो गरीब आदमी की पहुंच से जो है बाहर होती हुई दिखाई देती हैं। बात की जाए यहाँ पर जो है मुर्गी के गोश्त की तो उसकी कीमत जो है 250-230 रुपए से बढ़ाकर जो है 350 रुपए तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से जो है दुकानदार जो है उसके साथ साथ यहाँ पर जो है कस्टमर है वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। ग्राहकों का कहना है कि मुर्गी का गोश्त जो है दिन ब दिन आसमान से उसकी कीमतें बातें करती हुई दिखाई देती हैं। बात भी करेंगे, हमारे साथ मौजूद है। भाई बताइएगा, मुर्गी की कीमतों में जो गोश्त कीमतें हैं उनका जो है रेट आसमान से बातें करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे?
मैं बस यही कहूँगा कि रमज़ान शरीफ से पहले गोश्त 120 रुपये, 130 रुपये, 150 रुपये, 200 तक था, लेकिन जैसे ये ईद की आमद हुई है 300, 350 दुकानें पर दुकानदार सेल कर रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? ऊपर ही कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्होंने खाना ही ईद पे होता है गोश्त, बस गरीब आदमी देख रहा है कि कहाँ से खरीदेगा। कुछ शॉप तो वैसे ही दुकानें बंद हैं। जी अवैस खान, बहुत शुक्रिया आपका। गोजरा के इलाके हफीज पार्क का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की नाअहली की नजर हो गया। मजीद तफसीलात जानेंगे हाफिज फरहान अली से। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये हफीज पार्क का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है। वैसे तो इसको वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कहा जाता है, लेकिन जो इसकी हालत हो चुकी है उसके लिहाज से ये महसूस होता है कि जैसे कोई खंडर बनता जा रहा हो। अरसे दराज से ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो गैर फाल है, लेकिन इंतजामिया की नज़रों से बिल्कुल ओझल है। साथ ही यहाँ पर म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया के दफातर मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा के दफातर मौजूद हैं, लेकिन कभी भी उनका ध्यान जो है इस खस्ता हाल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की जानिब नहीं गया। जी फरहान अली, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि समाना पुल की 27 साल आसफा गुर्दों की मौसी मर्ज में मुब्तला है। इलाज के लिए 17 लाख रुपए दरकार हैं, लेकिन घर में फाकों की नौबत आई है। वालिदैन बेटी के गम में निढाल हैं, इलाज के लिए मुखैर हजरात से ताउन के मुंतजिर हैं। समाना पुल की रहायशी आसफा पिछले 2.5 साल से गुर्दों के मूजी मर्ज में मुब्तला है। मरीजा की रिपोर्ट के मुताबिक उसके दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं। बर वक्त ऑपरेशन से आसफा की जान बचाई जा सकती है। आसफा का कहना है 2.5 साल से बीमारी से लड़ रही हूँ। वो अपने 10 माह के बच्चे के लिए जीना चाहती है। डॉक्टर ने किया 17 तो 18 लाख रुपया चाहिए ऑपरेशन वास्ते। भाई मेरा छोटा, मेरे तो ना 3-4 साल छोटा, वो मैंने गुर्दा देने वास्ते तैयार आ। वो कहना मैं गुर्दा दे दिंदा, मेरी भैन दी जान बच जाए। मरीजा की वालदा का कहना है अपना जाती घर बेचकर बेटी पर लगा दिया। 17 लाख रुपए बेटी के इलाज के लिए दरकार हैं, लेकिन नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि 1700 भी नहीं है। 2.5 मरले का मकान सी मेरे को कच्चा पक्का बनया, वो भी मैं बेच के इत्थे आ गई। भी कोई मेहनत इत्थे करन दियां बच्चियां ते इलाज करावां दी। मेरे बच्चे 2 कमांदे आ, वो भी इहदे इलाज ते लगदे आ पे। अगर मुखैर हजरात इस फैमिली के साथ तावन करें तो आसफा दोबारा जिंदगी की तरफ लौट सकती है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि फैसलाबाद अलाइड अस्पताल इंतजामिया कोरोना वायरस के मरीजों को न्यूरोलॉजी वार्ड में मुंतकिल करेगी। मजीद तफसीलात जानेंगे सदार हुसैन से। अलाइड अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कोरोना वायरस के जो मुश्तबा मरीज हैं उन्हें अलाइड अस्पताल में रखने का फैसला किया गया है, और इस सिलसिले में किस वार्ड में रखा जाएगा उसका तरीकाकार क्या होगा। हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट अलाइड अस्पताल डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ साहब मौजूद हैं। सर बताएं कि सैंपलिंग कौन करेगा और इसका तरीका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने बताया कि अलाइड अस्पताल की एमरजेंसी में हमारे सस्पेक्टेड कोरोना के पेशेंट आते हैं, तो उसमें हमने अब ये किया है कि अगर कोई ऐसा मरीज़ आए जिसकी हमें शक हो कि इसको कोरोना हो सकता है, हमने एमरजेंसी के साथ ही हमारा एक न्यूरोलॉजी का वार्ड है वो हमने खाली करवा लिया है। हम इस तरह का मरीज़ जो है ना, जब तक उसकी टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती वो उधर स्टे कर लेगा। उतनी देर में उसकी 1-2 दिन में टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी, वहाँ से उसका सैंपल होगा और वहाँ से ही हमारी लेबॉर्ट्री में चला जाएगा। और वो जी सदार हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि जुर्माने की औस अब कोई भी कैदी जेल में नहीं रहेगा। मजीद तफसीलात जानेंगे राना फजील अहमद से। जी बिल्कुल, आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो सुप्रिटेंडेंट हैं सेंट्रल जेल अली अकबर, उनकी आमद हुई है और सनतकारों से मुलाकात की गई है। और सनतकारों की जानिब से माह रमज़ान के मौका पर जो ऐसे कैदी हैं जिनके अदालत से रिहाई के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, लेकिन वो जो जुर्माने हैं वो अदा नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक मखसूस रकम जो है वो दी गई है ताकि वो कैदी ईद के मौका पर अपने प्यारों के साथ ईद गुजार सकें। तो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर और जो सुप्रिटेंडेंट हैं सेंट्रल जेल वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो सबसे पहले सुप्रिटेंडेंट जेल हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। बहुत अच्छा एक इकदाम उठाया गया है सनतकारों की जानिब से। जी सर बताइएगा आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि सनतकारों की जानिब से बहुत अच्छा इकदाम उठाया गया है कैदियों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी सबसे पहले राना आज़म सिकंदर साहब का मशकूर हूँ। इनसे मेरी बात हुई थी कुछ दिन पहले, तो हमारे दरमियान ये तय पाया था कि जो छोटे जुर्माने हैं वो ईद से पहले सारे घर जाएंगे, और आज इनसे मुलाकात हुई है। मैं बड़ा मुझे इन्होंने इज़्ज़त अफजाई की है कि मैं चैम्बर में हाज़िर हुआ हूँ और कैप्टन फारूक साहब इनके साथ हैं।
जी फजील अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब का मरहलावार स्कूल खोलने का प्लान जारी कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी, कोरोना वायरस से बचने के लिए तालीमी अदारों को बंद किया गया था और ये ऐलान 15 जुलाई तक है कि तालीमी अदारे बंद रहेंगे, लेकिन स्कूल जब दोबारा ओपन होंगे तो किस तरह से इनको चलाया जाएगा, इस हवाले से मरहलावार स्कूल खोलने के हवाले से एक प्रपोजल तैयार किया गया है महकमा तालीम पंजाब की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन अजला में कम केसेस होंगे सबसे पहले वहां पर स्कूल्स को खोला जाएगा और इस हवाले से हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल जो हैं उनको पहले मरहले में खोला जाएगा, जिनमें हफ्ते में सिर्फ 3 दिन क्लासेस की इजाज़त होगी, जिसमें मॉर्निंग के साथ साथ आफ्टरनून और इवनिंग 3 शिफ्टों में क्लासेस जो हैं वो लगाई जाएंगी। और सोशल जी बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स से मुतलका शहरियों की शिकायत हल कराने के लिए बनाया जाने वाला ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल लॉकडाउन के दौरान फाल न हो सका। मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर असमत से। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से वजीर आजम पोर्टल की तर्ज पर फरवरी के आखिर में प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल का इफ्तिताह किया गया था और इस हवाले से सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन हाफिज मुमताज़ ने सूबाई सतह पर इस पोर्टल का इफ्तिताह किया था, जिसके काम ये थे कि जितने भी प्रॉपर्टी टैक्स गुजार हैं और इनकी जो भी जायदादें हैं उनकी तमाम तफसीलात जो थी वो इस प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल पर अपलोड किए जाना थी, जबकि जायदादों की तस्वीर और उनकी तफसीलात भी इस पोर्टल पर अपलोड होना थी, जिन्हें शहरियों को एक्सेस हासिल होना थी कि वो खुद अपनी जायदाद और उसके टैक्स से मुतल्लिक रहनुमाई हासिल कर सकें। जबकि इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स से मुतल्लिका जितनी भी शिकायत थीं या मसाइल थे उनकी भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज होना थी, ताकि शहरी अपने घर से बैठे हुए। जी बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट में कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर न अपनाने वालों के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक हो गई। मजीद तफसीलात बताएंगे फसीउल्लाह। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर ना अपनाने वालों के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक दिखाई देती है और अब तक अगर जिला भर में बात की जाए तो 125 मुकदमात इसी तनाजर में दर्ज किए गए हैं, जिसमें 199 अफराद ऐसे थे जिनको खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर चिन्योट और DPO चिन्योट का कहना है कि जो SOP हुकूमत की जानिब से वाज़ा किए गए हैं उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। बाज़ारों में सोशल डिस्टेंसिंग्स और दुकानदारों में जो है सैनिटाइज़र की अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ दुकानों में सफाई के अमल को भी यकीनी बनाया, जबकि दीगर जो भी SOP हुकूमत की जानिब से वादा किए गए हैं उस पर अमल दरामद यकीनी। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। थाना D टाइप के इलाके में डकैती की वारदात हुई है। फूड डिलीवरी कंपनी के राइडर को असलिया की जोर पर लूट लिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे जुल्करनैन ताहिर से। ये डकैती की वारदात थाना D टाइप के इलाके में हुई है, जहां पर एक निजी फूड कंपनी का राइडर डिलीवरी देने के लिए जा रहा था। उसे मुसल्लह डाकुओं की जानिब से रोका गया और उसकी जेब से नकदी और मोबाइल फ़ोन निकाल लिया गया। वाकई की जो CCTV फुटेज है वो City 41 ने हासिल कर ली है और CCTV फुटेज में डाकुओं को डकैती की वारदात करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा भी जा सकता है। उनके चेहरे भी जो हैं उनको भी शनाख्त किया जा सकता है। उनकी वाज़ेह फुटेज जो है वो मौजूद है। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकू जो है वो पीछे से मोटरसाइकिल पर आते हैं और पिस्तौल लहराते हुए राइडर को रोकने का कहते हैं। रोकने के बाद जो है उसकी जेब से नकदी और मोबाइल फ़ोन निकाल कर मौके से फरार हो जाते हैं। ताहम पुलिस अभी तक जो है वो डकैतों तक नहीं पहुंच सकी। ताहम पुलिस का ये कहना है कि डाकुओं की तलाश जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया जुल्करनैन ताहिर। अब आपको बताएं कि चिन्योट जिला के 23 स्कूल महकमा तालीम इंतजामिया की नजरों से ओझल हो गए। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में महकमा तालीम के आला अफसरान की मुबैना गफलत सामने आई है और ज़िला भर में देखा जा रहा है कि 23 स्कूल ऐसे हैं जिनकी 4 दीवारी ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी। छुट्टियां हैं, लेकिन महकमा तालीम चिन्योट की जानिब से स्कूलों में तामीराती काम ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। इस वाले से हम इस वक्त मौजूद हैं चिन्योट की तहसील बुआना का इलाका चक नंबर 200 नसराना में और यहाँ पर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जदीद नंबर 1 है, जिसकी 4 दीवारी गुज़िश्ता कई सालों से तामीर नहीं हो सकी और यहाँ पर गैर मुतल्लका अफराद की आमदोरफ्त जारी रहती है, जिसकी वजह से न सिर्फ देखा जाता है कि असातिज़ा समेत जो है वो तालबात जो है वो शदीद परेशान दिखाई देते हैं। इस बार से जो यहाँ पर इलाका मकीन है उनकी जानिब से और यहाँ पर हेड मास्टर्स की जानिब से जो है वो महकमा तालीम के अफसरान को दरखास्तें भी दी गई कि 4 दीवारी के अमल को यकीनी बनाया जाए, लेकिन ताहाल महकमा तालीम चिन्योट की जानिब से जो है वो 4 दीवारी को मुकम्मल नहीं किया गया। इस वाले से इलाका मकीनों का ये मुतालबा है कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जदीद नंबर 1 नंबर 200 नसराना की तामीराती काम को मुकम्मल किया जाए और 4 दीवारी को मुकम्मल किया जाए, ताकि यहाँ पर जो गैर मुतल्लका अफराद की आमदोरफ्त रहती है वो ना हो सके और बच्चे जो ज़ेवर तलीम रास्ता करते हैं उनके दुश्वारी ना। जी अब्दुल कदीर, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए